Hello students, welcome back to Aristotle classes. In today's session, we will try to understand peace building theories. So, what are peace building theories? Why do we need them? And why it is essential to make such efforts? So, let's start. We all know that we are under the constant threat of World War III. We are having almost 3 to 4 active wars in the world right now. Russia, Ukraine, okay, Israel, Palestine, something is going in South Sudan, okay, and we are also facing the trade wars. So we are under the constant threat of wars. So when we are living in the under this threat of war, we cannot thrive. We cannot go for development because wars obstruct development. So we need peace for development. That's why we need peace building theories. Okay, so in today's session, we will try to understand peace, conflicts, and various peace building theories. Okay, so let's start. Before starting, I want to tell you uh, something very important. So, to understand any subject, you need to focus upon the fundamentals of that subject, isn't it? The very basis of that subject. And to understand the basis of the subject, you need to focus upon terms and language, two important aspects of the fundamentals of the subject. Terms, it tells us the structure of the subject, and language gives us perspectives. Okay, so by understanding terms, I want to raise an example here that you must be knowing about the word capital. What is the meaning of word capital? Let's say in English language, capital means capital and small letters, isn't it? Capital letter, small letters. But what is the meaning of capital in polity? It is a center of power from where the government rules. What is the meaning of capital in economy? In economy, capital means what? The resources, isn't it? So we have to understand the terms of every subject. The terms, the understanding of the terms differs subject to subject. So first focus upon the terms very well, then try to understand the language of that particular subject. Language of a particular subject tells you the perspectives about that subject. Okay, so I would request you to keep this in mind, that to understand any subject you need to know the fundamentals. For knowing fundamentals, you must focus upon terms and language. Okay, so in order to understand peace building theories, let's start understanding peace first. So what is peace? Peace, you can say that absence of war, absence of violence, absence of difficulties can be understood as peace. Yes, it is peace. But is it proper peace? Like, suppose you are having no quarrels, no लड़ाई with anyone in your life. But क्या आपके जीवन में शांति है? क्या शांति इसी से आती है? लड़ाई के ना होने से? एक्चुअली शांति आती है डर के ना होने से, आपके पास राइट्स होने से, अपॉर्चुनिटीज़ होने से. ठीक है, तो जो इस एस्पेक्ट की हम बात कर रहे थे, ये नेगेटिव पीस का एस्पेक्ट है. ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही है लेकिन वहाँ पे अनजस्टिस प्रिवेल कर रहा है. ठीक है, सो ये है नेगेटिव पीस का कंसेप्ट. पॉजिटिव पीस कहता है कि वॉर तो हो ही नहीं रही, साथ में जस्टिस भी है. एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने, एग्जाम्पल से आप लोग समझ ही गए होंगे. अफ्रीका में ऐसे ही साउथ सुडान को छोड़ दिया जाए
कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही, लेकिन आर दे ग्रोइंग, आर दे डेवलपिंग, इज देयर जस्टिस प्रिवेलिंग देयर? नो. So we need to focus upon positive aspect of peace, which says that you must be non-violent, you must be having no wars, as well as you must be giving some special conditions to the citizens, to the people. Okay, so this is the concept of peace we need to understand. Now, what is conflict? Let's start understanding the conflict. सो कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग विच वी फेस इन आर डेली लाइफ्स. ठीक है, आदमी, ये एक आदमी है. आदमी क्या होता है? आदमी होता है गलतियों का पुतला, है ना. अ मैन इज़ टू एयर. सो इंसान गलतियाँ करता है. ठीक है, इंसान गलतियाँ करना चाहता है, ये उसका नेचर होता है. वैसे ही एक नेचर होता है उसका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना. ठीक है, क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है. उस इंटरेस्ट को परस्यू करने के दौरान डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं. यू वांट टू यू हैव गॉट 100 रुपीज़, यू एंड योर सिबलिंग, आप और आपकी बहन है. मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, आपको ख़रीदना है एक ही चीज़ जो 100 रुपये में आती है. अब आप चाहेंगे कि आप अपने पसंद का खरीदें, वो चाहेंगे कि उसके पसंद का खरीदें. कम बैक, गो इन टू द एरा व्हेन वी यूज्ड टू हैव टीवी, ओनली टीवी एज मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट. तब क्या? तब रिमोट को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता था कि रिमोट किसके पास रहेगा, किसकी पसंद की चीज़ चलेंगी. सो इंटरेस्ट. टीवी क्या हो गई? एक रिसोर्स हो गई. ठीक है, वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं आपके. 100 रुपये में आप चाहेंगे कि उसको डोनेट कर दें, और आपकी बहन चाहेंगे कि नहीं भाई हम खुद खाएंगे, डोनेट क्यों करें, इतना थोड़ी दिया है भगवान ने हमको. पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंटरनेशनल रिलेशंस में. पावर और इंटरेस्ट, इन दोनों के लिए होते हैं क्या? कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है, कैन नॉट बी अवॉइडेड. ठीक है, नेचुरल है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है. कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा. और कॉन्फ्लिक्ट को क्या हम समझते हैं कि एक नेगेटिव कॉन्नोटेशन समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट को. बट कॉन्फ्लिक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता. कॉन्फ्लिक्ट ग्रे एरिया होता है. कई बार कॉन्फ्लिक्ट के बाद चेंज आता है, जैसे रिवॉल्यूशन भी कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न है. अगर हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं किया होता तो हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, है ना. सो ये भी कॉन्फ्लिक्ट था, बट उसका पॉजिटिव आउटकम आया. सो ऐसे ही हमें पीस को हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं देखना है. ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देखना है. इसके भी नेगेटिव एस्पेक्ट है और इसके भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है. ठीक है, एस्पेक्ट से आई करेक्टेड माई सेल्फ, लीड्स टू चेंज. सो व्हाई डू वी नीड पीस? कॉन्फ्लिक्ट को क्यों कम करके हमको पीस चाहिए? बिकॉज वी नीड सिक्योरिटी, जस्टिस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी. हम सोसाइटी में रहते हैं, अकेले नहीं रह सकते. तो जब हम साथ में रहते हैं तो हमको सिक्योरिटी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे का कत्ल ना कर दें. एक दूसरे के अगेंस्ट हमको जस्टिस चाहिए. अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो आपको चाहिए कि मैं उसकी पेनल्टी भरूँ और आगे से ऐसा ना करूँ, और हम लोग मिलजुल कर साथ साथ रहें. ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट. फॉर दीज थिंग्स वी नीड पीस. क्लियर है? सो मूविंग फॉरवर्ड, पीस. देखो, हमने पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेचुरल है, बट पीस ये आर्टिफिशियल है. ठीक है, नेचर में पीस जैसी कोई चीज़ नहीं होती. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको सरवाइव करना है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा. बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट peaceful society, so we need to make some mechanisms to establish peace. That's when peace building theories comes into the picture. There are 3 types of peace building theories. First, liberal. Second, structuralist. Third, feminist. Okay, so in these theories we try to understand how to establish peace in the world and in the societies as well. Okay, so peace in the societies and in the world in large. Okay, so let's start with liberal theory.
Do you understand the world of the meaning of the word liberal? Liberal has got one specific understanding with freedom. One who is free is liberal, free to new thoughts, to new ideas. Okay, so liberal theories focuses upon what? Free market, freedom. Okay, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा पार्ट है. ठीक है. सो व्हेन you will be having human rights, you will be having free market, you will be exercising your will. ठीक है. To maintain them you need tools. So tools क्या होंगे? डेमोक्रेसी एक टूल होगा. टूल्स को हम राइट से लिखते हैं. डेमोक्रेसी एक टूल होगा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन टूल होगा, रूल ऑफ लॉ टूल होगा. ठीक है. सो लिबरलिज्म क्या है? लिबरल क्या होता है? फ्रीडम होती है. You have freedom, then you are liberal. You are given freedom, then you are the authority which is giving you the freedom, that is liberal. फैमिली इज लिबरल है क्या? हमारी फैमिली उसी एक्सटेंट तक के लिबरल है जितनी हमको फ्रीडम देती है. ठीक है ना. सो फ्रीडम लिबरलिज्म के लिए, लिबरल थियरी में फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए हम मैकेनिज्म्स क्रिएट करते हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जो फ्रीडम को इंश्योर करें. रूल ऑफ लॉ बनाएंगे, हम डेमोक्रेसी क्रिएट करेंगे. वाई डेमोक्रेसी? इमैनुअल कांट कहता है कि डेमोक्रेसीज रियली फाइट विथ ईच अदर. ठीक है. जो दो चीज़ें लड़ती है वो उसमें से एक डेमोक्रेसी नहीं होती. रशिया यूक्रेन में कौन डेमोक्रेसी नहीं है? इजराइल पैलेस्टीन में कौन डेमोक्रेसी नहीं है? इंडिया पाकिस्तान में कौन डेमोक्रेसी नहीं है? सब पता है आपको. इस थ्योरी के कुछ अजप्शंस हैं. क्या क्या अजप्शंस हैं? डेमोक्रेटिक स्टेट रिजॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट. क्या लगाना है आपको? डेमोक्रेसी एक टूल होता है. ठीक है. वो आप लगाओगे तो रिजॉल्व हो जाएगी. ठीक है. डेमोक्रेसी मैंने समझाया है लास्ट लेक्चर में. ठीक है. तो जाके देखो डेमोक्रेसी क्या होती है, समझ में आएगा. ठीक है. डेमोक्रेसी में क्या होता है? वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. हम इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे. तो इसमें क्या होगा? जब इकोनॉमिकली हम इंटरडिपेंडेंट होंगे सो ऑटोमेटिकली डिस्करेज होगी वॉर. अगर मुझे आपसे कुछ काम है तो मैं आपसे लड़ाई नहीं ही करूँगा. ठीक है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना पड़ेगा हमको. इंस्टीट्यूशन बनाने की बात हो रही है जो स्टेबिलिटी लाएंगे. जैसे यूएन कोशिश कर रहा है वॉर रोकने की, लेकिन क्या रोक पा रहा है? नहीं. तो उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है. और रूल ऑफ लॉ, एवरीबडी इज़ इक्वल. अगर रशिया गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट सैंक्शंस लगाने चाहिए. यूक्रेन गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट लगाने चाहिए. सो ऐसा हम ट्रीटमेंट देके हम कोशिश कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पीस इस्टेब्लिश हो जाए. ये लिबरल थियरी कहती है. ठीक है. क्या क्या पीस बिल्डिंग मेथड्स होंगे लिबरल थियरीज की? वही जो डेमोक्रेसी की होती है. इलेक्शंस करवा लो फ्री और फेयर. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन बनवा लो. ठीक है. मार्केट इकॉनमी तो रहेंगे ही रहेंगे. लिबरलिज्म की यही निशानी है. मार्केट इकॉनमी, फ्री इकॉनमी, फ्रीडम. वही इंस्टीट्यूशन बनवा लो. इंस्टीट्यूशन बनाना इनका मेन काम है. ठीक है. इंस्टीट्यूशन आर द प्रॉब्लम ऑफ एवरी सॉल्यूशन. ठीक है. यूएन बना के भी वो इंस्टीट्यूशन ही बना रहे हैं. तो लिबरल थियरी क्या करेंगी? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेंगे टू मेंटेन व्हाट? फ्रीडम. फ्रीडम भी है और पीस ही तो इस्टेब्लिश करना है. फ्रीडम रहेंगी तो पीस रहेंगी. कोई एक दूसरे की फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा. यही है पीस. ठीक है. क्या हर तरीके से सही है ये? नहीं. क्यों? क्योंकि एक तरीके से इम्पोज्ड होती है. लिबरलिज्म थोपा जाता है दूसरी कंट्रीज़ पे. वहाँ का लोकल कल्चर इग्नोर किया जाता है. आपको कहा जा रहा है कि आप ये टूथपेस्ट यूज़ करो. ठीक है. जिसमें क्या है? नमक है. आप कर रहे हो दातून नीम की लकड़ी से. आपको बोलेंगे कि आपके दातुन में तो नमक ही नहीं है तो आप ये यूज़ करो. भाई हम क्यों यूज़ करें? हमारी ऑलरेडी बेटर है. हमारे पास हमारे दांतों को कोई दिक्कत नहीं है. उसमें फैब्रिक भी है, फाइबर भी है, उसमें एंटीबायोटिक्स भी है. दातुन में काम हो जा रहा है. आप केमिकल्स डाल रहे हो हमारे मुंह में. सो लिबरलिज्म उस ये नमक वाले टूथपेस्ट की तरह इम्पोज किया जाता है. ठीक है. बेनिफिट्स एलिट्स को बेनिफिट करता है ना. ये बेच के किसका फ़ायदा होगा? मार्केट की क्यों इतनी बात कर? लिबरलिज्म फ्री मार्केट की इतनी बात क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रॉफिट चाहिए. मार्केट का खेल है पूरा. ठीक है.
और अगर जल्दी जल्दी में हम करेंगे तो इंस्टेबिलिटी क्रिएट होंगी, जैसा कई जगहों पर हुआ और सब रूइन हो गया वैसे। ठीक है, सो नाउ स्ट्रेंथ क्या होती है इस चीज़ की? स्ट्रेंथ होंगी इंस्टीट्यूशंस तो बनाता है भाई ये, इंस्टीट्यूशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशंस तो क्रिएट करता है, इंटरनेशनल सपोर्ट रहता है, क्योंकि पूरा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में सबको अभी ये चीज़ चाहिए, क्या? लिबरलिज्म चाहिए, मार्केट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, और क्या चाहिए? डेमोक्रेसी चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूशन बनाता है। तो लिबरल थियरी बहुत जस्टिफाइड, बहुत रिलेवेंट है फिलहाल के लिए, और पीस और डेवलपमेंट को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? लिबरलिज्म होगा, मार्केट होगा, ठीक है, क्या होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट चाहिए तो फिर पीस इस्टेब्लिश रखूँगा ही है। जैसे कि यूएई में मार्केट बहुत अच्छे हैं, लड़ाइयाँ होती है क्या वहाँ पे? मिडिल ईस्ट की कंट्री है ना, नहीं होती, क्योंकि मार्केट इतना स्ट्रांग है। बस यही करता है लिबरल थियरी, कर दिया हमने पीस इस्टेब्लिश। अब देखो, इसको ध्यान से देखो, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट की पिक्चर है ये। क्या कहती है ये पिक्चर? ये कहते हैं कि अपार्थाइड को हटाओ वहाँ से। ठीक है, सो क्यों पढ़ा, क्यों देखा हमने ये? एक्चुअली होता क्या है ना, आपने मार्केट को ला दिया, आपने इंस्टीट्यूशंस बना दिए, उसके बाद भी सोसाइटी में जस्टिस और इक्वालिटी आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो जहाँ जस्टिस और इक्वालिटी नहीं होंगी वहाँ पे हम लोग जाएंगे स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के साथ। स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज क्या कहती हैं कि वॉयलेंस जो है सिर्फ डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है, कि आपने वॉर एलिमिनेट कर दिया तो आप वॉयलेंस आपने एलिमिनेट कर दिया, भाई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में एम्बेडेड होता है वॉयलेंस। पॉलिटिकल में कैसे है? करप्शन है। इकोनॉमिक में कैसे है? इनइक्वालिटी है। सोसाइटी में कैसे है बताओ? डिस्क्रिमिनेशन है। ये सारी चीज़ें वॉयलेंस नहीं है। सो इसको योहान गाल्टन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल वॉयलेंस। ठीक है, जो सिस्टमिक होती है, सिस्टम में एम्बेडेड होती है। ठीक है, तो जब तक कि ये एलिमिनेट नहीं होंगी तब तक के हम पीस नहीं अचीव कर सकते। तो कीज ऑप्शंस क्या होते हैं इसके? थोड़ा सोशलिस्टिक टोन है उसकी, जो हमने लिबरल पढ़ा उसकी मार्केट, उसकी कैपिटलिस्टिक टोन है। सो क्या कहती है ये? पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कॉजेस कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रक्चरल के कारण आ रहा है ना, क्यों? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण आ रही है इनइक्वालिटी, है ना, ये कारण है कॉज कॉन्फ्लिक्ट का। कैपिटलिज्म प्रोड्यूस करता है एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन प्रोड्यूस होगा, पीस एंड पॉवर्टी होगा, तो फिर इनइक्वालिटी आएंगी, है ना। सो ये चीज़ें हैं। इनइक्वालिटी क्या है? स्ट्रक्चरल वॉयलेंस है। स्ट्रक्चरल वॉयलेंस है तो पीस नहीं होगा, बस ये चीज़ है। पीस रिक्वायर्स सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सिस्टम कितने तरह का होता है? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, तीनों में से जो वॉयलेंस है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको क्या हटाना पड़ेगा? इनइक्वालिटी हटाना पड़ेगा, आपको करप्शन हटाना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिमिनेशन हटाना पड़ेगा, तब जाके पीस आएगा। आप बोलोगे कि मार्केट लगा देंगे, डेवलपमेंट कर देंगे, नहीं, इतने आसानी से नहीं होगा। सो सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर पीस नहीं है, ये सारी चीज़ें ठीक करके हम पीस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं मेथड्स ये लोग? रिडिस्ट्रीब्यूट करते इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ताकि इक्वालिटी आए, लैंड रिफॉर्म करते हैं ताकि इक्वालिटी आए, सोशल प्रोग्राम चलाते ताकि इक्वालिटी आए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशंस को कम करते हैं। ठीक है, और ग्लोबल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं कि सब बराबर, है ना। सो ये चीज़ है। ठीक है, तो वो जो पिक्चर हमने शुरू में देखी थी वो पिक्चर थी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट की, जिसको लीड किया था नेल्सन मंडेला ने। उन्होंने कहा था कि रेशियल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दूंगा, और उन्होंने अपार्थाइड जो वहाँ का रिजीम था, जो रेशियली सुपीरियर था, वाइट थे जो रूल करते थे, उनको उठा के बाहर फेंका। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लैंड रिफॉर्म्स हुए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया में कहाँ हुए बताना कमेंट्स में। और वेलफेयर बेस्ड जो पीस है स्कैंडिनेवियन स्टेट्स में, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी? रूट कॉज को एड्रेस करता है। इतना आसान नहीं रूट कॉज को एड्रेस करना। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए योहान गाल्टन बताते हैं कि ABC पिरामिड होता है कॉन्फ्लिक्ट का, कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे तो आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको क्या एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है या बिहेवियर? नहीं, आपको
ये जो कॉन्ट्रडिक्शन का रूट कॉज है ना, उसको डील करना है, तो ये वही करता है। और रूट कॉज क्या है? इनजस्टिस, तो ये जस्टिस पे फोकस करता है, लॉन्ग टर्म पीस की बात करता है। सही है, बट क्या पूरा सही है? नहीं, थोड़ा आइडियलिस्टिक नहीं लगता ये? थोड़ा आइडियलिस्टिक है, इसलिए डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, पॉलिटिकल विल नहीं होती, इसलिए स्लो रिजल्ट होते हैं। होम्योपैथी आयुर्वेदिक टाइप का काम है इसका। ठीक है, और कल्चरल इश्यूज़ को इग्नोर किया जाता है इसमें, क्योंकि आप पूरा फोकस इकोनॉमी पर डाल देते हैं, तो आपके कल्चरल इश्यूज़ डाउन हो जाते हैं। सो ये स्ट्रक्चरल, तो पहले हमने पढ़ा कि डायरेक्ट वॉयलेंस को एलिमिनेट करना है, फिर हमने देखा कि स्ट्रक्चरल वॉयलेंस को एलिमिनेट करना है। अब तीसरी चीज़ आती है फेमिनिस्ट थियरी। ये कहते हैं कि यार तुमने तो जेंडर की तो बात की ही नहीं पूरे इसमें, कि एक है मेल एक है फीमेल, तो ये तो मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है ना, फीमेल की तो कोई बात हुई नहीं। तो फीमेल बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड है सोसाइटी में, सो देयर इज़ नो पीस विदाउट वुमेन, तो वुमेन को आपको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वुमेन बात करती है कि वुमेन को और जेंडर्स को इग्नोर किया गया है, तो उनको हमको पीस बिल्डिंग में शामिल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो ये लोग बताते हैं कि वॉर से और मिलिट्रिज्म से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? फीमेल को होता है ना। और कॉन्फ्लिक्ट, फीमेल के लिए कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट होता है, उनको पावर नहीं मिलती, उनको सिर्फ क्या मिलता है? पेन मिलता है। ठीक है, पेट्रियार्की बनी ही इसलिए ताकि वॉयलेंस कंटिन्यू हो सके, डायरेक्ट, स्ट्रक्चरल, कल्चरल, तीनों टाइप की वॉयलेंस। ठीक है, और पीस क्योंकि इंक्लूसिव होना चाहिए, इसलिए मेल फीमेल दोनों को बराबर तरीके से मिलना चाहिए। क्या बोलती है फीमेल फेमिनिस्ट थियरी? क्या करना चाहिए हमको चाहिए कि वुमेन को पीस टॉक्स में शामिल करो। ठीक है, जेंडर बेस्ड वॉयलेंस को एड्रेस करो और उसको रिजॉल्व करो। ठीक है, वॉर में सिर्फ महिलाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्यों? क्योंकि वो जिन पर डिपेंडेंट है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें वॉर ही ख़त्म करनी है ताकि महिलाओं को नुकसान ना हो। ठीक है, और ग्रास रूट मूवमेंट्स जो है वो महिलाओं को सपोर्ट करें। ठीक है, पॉलिसीज़ जो बने जेंडर सेंसिटिव बने। सो ये सारी चीज़ें कहती है फेमिनिस्ट थ्योरी। क्या इसके प्लस है, क्या माइनस है, पता ही है हमको? पता है, नहीं पता है? नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बोल दिया पता है। पता है, इंक्लूसिव, एक जेंडर को शामिल कर रही है। ठीक है, जो अभी तक के फीमेल्स मार्जिनलाइज करी थी उनको शामिल कर रही है, हमको ट्रांसजेंडर को भी शामिल करना है ना, LGBTQ को भी शामिल करना है इसमें, ताकि सबका साथ सबका विकास हो। एड्रेस एवरी वॉयलेंस, हर तरह की वॉयलेंस एड्रेस करती है, डायरेक्ट, स्ट्रक्चरल, कल्चरल, सब तरह की। ठीक है, ग्रास रूट इफेक्टिवनेस पे काम करती है ये चीज़। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या है इसका? पता है, मार्जिनलाइज्ड है थोड़ी सी है, इनफॉर्मल डेमोक्रेसी, उतना मेन स्ट्रीम नहीं है ये। कल्चरल रेजिस्टेंस आता है क्योंकि पेट्रियार्कल समाज है और पॉलिटिकल पावर लिमिटेड है, तो ये हम एग्जीक्यूट उतने आसानी से नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? अब बात करते हैं ग्रास रूट एंड कम्युनिटी लेड पीस बिल्डिंग की। तो सबसे अच्छा जो ये सारी जो हमने थीरीज पढ़ी, इनकी अप्रोच थी टॉप डाउन। ठीक है, ऐसा होता है ना पिरामिड, यहाँ पे अथॉरिटीज़ रहती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये अथॉरिटीज़ से लोगों तक के आ रही है। ठीक है, अथॉरिटीज़ से पीपल तक के आ रही है। हम बात कर रहे हैं ऐसी पीस बिल्डिंग थ्योरी की जो पीपल से अथॉरिटी तक के जाए। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच के साथ। तो सिविल सोसाइटी है, कम्युनिटीज़ है, ग्रुप्स है, वो लोग क्या करें वो लोग कैरी आउट करें क्या? पीस बिल्डिंग एफर्ट्स को। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना करे, तो जब अंदर से आएगा लोगों के, तब वो चीज़ सस्टेन करेंगी। समझ रहे हो? आपस में जब मांडवाली करेंगे तो पीस सस्टेन करता है। ठीक है, लोकल ओनरशिप पे फोकस करेंगे, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के बीच झगड़ा अगर कल्चरल इश्यूज़ के कारण हो रहा है तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। लोग आपस में जब मिलकर रिजॉल्व करेंगे तो ट्रस्ट रहेगा एक दूसरे पे। गवर्नमेंट पे, मार्केट पे ट्रस्ट थोड़ा कम रहता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। टॉप डाउन पीस बिल्डिंग क्या होता है? एक्सटर्नल मेथड्स हम यूज़ करें। ठीक है, लोकल कल्चर इग्नोर हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेशनल एक्टर्स जब वो काम नहीं करता है तो भाग जाते हैं। ठीक है, तो जो हम अच्छा करने आए थे उसको हम और ख़राब करके चले जाते हैं। उससे बेहतर क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करो, उनको एम्पावर करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, जैसा अमर्त्य सेन कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटी बिल्ड करो, वो अपने आप बड़े होंगे। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी लेड पीस बिल्डिंग। कहाँ पे? ग्रास रूट लेवल पे। ये कुछ उसके
फीचर्स है, आप ध्यान से पढ़ो और देखो उसको पॉज करके। ये सब समझने की चीज़ें, ये बहुत से प्रैक्टिकल चीज़ है, हम समझ में आ ही जाती है ये। एक बार पॉज करके देखो इसको और फिर इसको देखो, ये एग्जाम्पल है। सो दीज वर द थिंग्स आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट पीस बिल्डिंग थ्योरीज। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा इसका। जैसे कि हमारे विलेज में होती है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वो ये चीज़ें करती हैं, बट लिमिटेशंस भी होंगी कुछ। क्या होगी? लिमिटेड स्केल पे होगा, लोकल होगा, पर यही तो चाहिए भी ना हमको। स्टेट का सपोर्ट ही नहीं होगा यार इसके साथ। जो आप रिकनसाइल करोगे ना, वो दो लोगों के बीच की बात होंगी, गवर्नमेंट उसमें पार्टी नहीं है, तो इन्फोर्स कैसे करोगे? है ना, इन्फोर्समेंट एक इशू हो जाएगा। लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी चीज़ों में मांडवाली नहीं होती। और नेशनल इम्पोर्टेंट के जो है ना, नेशनल इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं वो कभी कभी इग्नोर कर दी जाएंगी इसमें। सो हमको इसको वाइजली यूज़ करना है। सारी जो थीरीज़ है वो किसी न किसी जगह पर फिट होती है, तो हमको देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ फिट होती है। सो वैसे तो ये टॉपिक है कौन सा? IR का। ठीक है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ते हैं हम। पीस पढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, हमने पीस बिल्डिंग थियरीज पढ़ी इसमें। और क्या पढ़ा? पीस बिल्डिंग थियरीज में क्या पढ़ी? लिबरल, फिर स्ट्रक्चरलिस्ट, फेमिनिस्ट, कम्युनिटी लेड या ग्रास रूट, इतनी चीज़ें पढ़ी हमने। ये एक IR का सब्जेक्ट है। हम पीस बिल्डिंग करते हैं किन के लिए? तो ये जो चीज़ें है ये IR, विश्व में शांति के लिए हम ये थीरीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी करना पड़ेगा हमको लोकल लेवल पे भी। अगर कहीं लोकल एथनिक क्लैशेज हो रहे हैं तो लोकल लेवल के हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो हम चाहते हैं कि जो नेशन स्टेट्स है आपस में मिलजुल के रहे, इंटरडिपेंडेंस के साथ रहे, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं। पीस रहेगा तो डेवलपमेंट होगा, बस सबका साथ सबका विकास। यही था आज का हमारा सेशन। इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, पीस क्यों इम्पोर्टेंट है वो बताओ, और ये भी बताना मेरे को कि ये आदमी कौन है? योहान गाल्टन। ठीक है, क्या योगदान है उसका पीस बिल्डिंग में? बताना कमेंट में अगर पढ़ोगे तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो आगे बढ़ाओ, कुछ क्रिटिसिज्म हो, कुछ हो तो फिर मुझे बताओ, मैं इम्प्रूव करूँ, और कुछ टॉपिक भी इंक्लूड करना हो तो मुझे बताओ। सो टिल द नेक्स्ट सेशन, कीप लर्निंग, कीप कंtemplating, keep improving your knowledge. Thank you.